About you. Hello everyone, my name is Amar Singh. Yes. Mr. Amar, your And I'm the started on this. I have taken so many courses and I have prepared well. And now I'm launching my course. To launch my course, I have to create some content online, and that's why I'm here today to see you all. okay. What is your niche? Can you again tell us? Stock market, stock market. Okay. Stock market. Yes. Okay. How much experience you have in this field? It's around 1.5 year. Mm-hmm. So from 1.5 year, I'm doing this. Okay. I have been into trading and investing and value investing. Okay. A lot of couple of things I'm doing now. Mm-hmm. So gradually, I'm getting towards being a coach of share market, trying to meet out the people who are ready to come into the share market and they want to invest and they want to understand like what is the real face of a stock market. Because see, in whatever I have learned from past 1.5 year, that there are two faces of the stock market. The real face, the people who are presenting real face of the stock market to the people are very few, and the people who are presenting the wrong face of the stock market to the people, they are very high because they want to earn money just like that, and they want people to earn money just like that. That is not going to happen. Okay. So that is the reality. शहर से हैं अमर जी? Pardon? Which city? I am from Lucknow. Okay. Yeah. So, guys, everyone unmute yourself and say all the best to Amar Singh for his upcoming All the best. venture. All the best. Thank you. Thank you so much, All ma'am. the Thank you so best. much. All the best, Amar. Thank you so much, ma'am. Thank you. And now, who is the next? Let's start with the Shruti. Yeah. Shruti, introduce yourself to everyone. Hello, everyone. So I'm Shruti Naik. I'm from Goa and I'm a mindset coach and a healer. So I help people manifest their dreams, and this is done by healing the past, whatever traumas are there. So I help them to first heal and then manifest their dreams. Wow. Very Yeah. nice agenda. Shruti, how much experience do you have in this field? Are you starting or you have experience? Yeah, I have experience into healing. That is from 1 year I am into healing. And into mindset coaching, I am like now starting. Good. So, how many of you here don't know about the manifestation? Just raise your hand. What is the manifestation word? If someone think manifestation is new word for you. Anyone is here? Manifestation is new word for you? No? Everybody knows? Okay, Amar. Shruti, elaborate more about the manifestation. Okay, manifestation is when you have a desire that you want to be or you want to do something in life. So you will have some particular desire and you will have some picture, a vague picture, not a very clear picture also. So I will help you to create that picture and then go and work towards it and achieve your goal. Understood? Wow. Thank you so much, Shruti, for sharing this knowledge. And everybody unmute yourself and say, congratulations, all the best for your upcoming venture to the Shruti. Congratulations, ma'am, and all the best to you. Congratulations and all the best, Shruti. Congratulations. Thank you. Now, Congratulations and all the best. Thank you. and now come to the Rashmi Bajaj. Rashmi Bajaj, आप बताइए अपने बारे में. Hi, I am Rashmi Bajaj from Ujjain, MP. मैं आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड मेरा एक मतलब मेरा एक छोटा सा बिजनेस है और मैं उसमें थिंग्स जो भी होती हैं डेकोरेट करती हूँ. लाइक घर को डेकोरेट करने से लेकर के आपका शादी में भी जो आइटम्स होते हैं, गिव अवेज होते हैं, वो सारा डेकोरेटिव और ब्राइडल ज्वेलरी, हैंडमेड फैब्रिक ज्वेलरी एंड ऑल. Wow. This kind of. How much experience do you have in this? I think I have started it before 2 years ago. 2 years
हाँ 2 साल का एक्सपीरियंस आई 2 हैव। साल का एक्सपीरियंस है। तो आप ये कहना चाहते हो कि अगर किसी को कस्टमाइज चीजें भी बनवानी है, दे कैन ऑर्डर यू एंड यू कस्टमाइज इट, राइट? यस। Okay, that's nice. That's good. So, guys, everyone unmute yourself and say all the best to the Rashmi for Thank her new starting online business scale up. You really don't, you want it, right? Yeah. all the best, Rashmi. हमारी क्लास को ओपन All the Thank you. best. हम Thank दोनों बहुत you. एक्साइटेड हैं। और पापा आज तो बहुत मजा आने वाला है। आपको पता है उस Guys, okay. Ankita, you are, okay. Archana, you are on mute. Let's come to, let's come over to you. Archana, अपने आप को introduce करो। आप जो भी करते हो, जो भी करना चाहते हो, you have to tell the world. Okay. Hello everyone. My name is Archana Singh. I am from Lucknow. मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ और अभी मुझे इतना एक्सपीरियंस तो नहीं है फिलहाल, बस सडनली अभी कोर्स किया है, आगे इसी को कंटिन्यू रखना चाहती हूँ, करना चाहती हूँ। So what is your purpose? ऑनलाइन जाके आप उसको कैसे, कुछ है आपके माइंड में कि मुझे कुछ, मतलब see, आप यहाँ आने से पहले ऑलरेडी एक विजन आपके माइंड में तो था कि मुझे ये चाहिए, राइट? आई वांट टू डू दिस। सो व्हाट इज द वन लाइन जो आपके माइंड में आया कि अगर मैं ये कुछ ऐसा कर लेती हूँ तो सोशल मीडिया के थ्रू आई कैन ग्रो? तो व्हाट इज दैट पर्पस? नहीं, जैसे मैम बहुत सारे बच्चे होते हैं कि पैसों की वजह से वो कुछ चीजें नहीं सीख पाते हैं, जो कि मैं उनको ऑनलाइन बता सकती हूँ, गाइड कर सकती हूँ। तो ये सोच के जी, और फिर बहुत सारे बच्चे की अर्चना मैं ही हूँ, मुझे बहुत सारा नॉलेज नहीं है ब्यूटी का। बहुत सारे बड़ों को भी नॉलेज नहीं है। I can yes be your ma'am. student, right? So Okay. take one topic from good. And now let's come to the guys. Everyone say all the best to the Archana. घंटों खड़े रहते थे। All the best, Archana. All the All best the to you, best, ma'am. All the Archana. best to you. Thank you. And let's come over to the Ankita. Ankita, please introduce yourself to each and everyone. Hi, all of you. I'm Ankita. I work as a secondary teacher in Vipure High School. And I'm also a certified soft skills trainer, and I'm also the student of host, today's host. So I came here to learn how to create a content. I'm already working on that. So my niche is like certified soft skills. So my niche is soft skills. So first is like self mastery. So I'm creating the content on that. Thank you. Ankita, can you elaborate this soft skill, because it should be more clear. Yeah, soft skills, like we are having a hard skill like technical skills. We know how to handle do all technical jobs. In the same way, soft skills are आप इस also तरह बैठ के ना खाए एक तो very क्योंकि बैठ ही नहीं soft पा रहे। skills. Okay. So soft skills are also like very dealing very softly with other people, how to mingle with the society, how you have to appear in a society, how to communicate in your society, how to deal with the problems of the society, like conflict management, communication skills, and all. These are the part of the soft skills. You are also mute. Indu, you are also on mute. So for with your content, how you are going to help others over social media? I'm going to create some YouTube videos and also some Instagram reels, so that where I can tell about why the soft skills are important, and I will take them through with this one. Indu, you are again Everyone, on mute. everyone give all the best and all the wishes to the Ankita. Thank you. All the best to you, ma'am. Congratulations. All the you. best, Ankita. Thank you. All the best, Ankita. Thank you. Now let's start the session, and session is today all about, मैंने जब श्रुति को इंटरप्ट किया कि what is the manifestation,
like Mr. Amar was telling about the stock market. Even Hello. half of us don't know few terms Hi, about the Himanshu, I'm stock on the market. other call. Can I Amar, talk to you later? sir, yeah. Everyone mute, guys. Okay, let me mute all. Okay. So we all have a niche, and that in that niche there are many terms many people don't know, right? Are you agree with this? There are many terms in your niche about what many people don't know, right? And what we have to take the agenda first. First agenda is what? How many topics in your niche which you can share with your audience. For example, Shruti can share about the manifestation. What is the manifestation? So you have to, जब आपको ऐसे सोशल मीडिया पे आना है और एक ऐसा तरह टीचर जो एकदम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता है. You don't need to be every time कि I am on the third or fourth level. I am telling people कि आप ये मैनिफेस्टेशन के लिए ये मोडालिटी यूज करो, राइट? एंड लोगों को पता ही नहीं कि मैनिफेस्टेशन क्या है, तो मोडालिटीज कैसे समझेंगे? और जब वो मोडालिटी ही नहीं समझेंगे तो वो आपसे क्यों सीखना चाहेंगे, राइट? So what we have to do as a content creator over the social media, हमें सबसे पहले बिल्कुल बेसिक्स पे काम करना चाहिए. एकदम बेसिक टॉपिक. आप समझो पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू कंप्लीटली न्यू. That person don't know about the A, B, C, D. Even few people don't know कि stock market क्या होता है. पर हमें क्या होता है? We always judge कि हमें इतना पता है तो सामने वाले को हमें और बताना है जान के. That's why we try to be perfect all years. क्योंकि हमें ऐसा लगता है जितनी नॉलेज हमारे पास है वो कम है. हम और अच्छी नॉलेज लेकर आएंगे. Then we will come over the social media. Then we start sharing the content. Then people get impressed. Am I right? Is it the main cycle going in your mind? Right? Yes. So what you have to do today, you have to reverse everything. आपके सामने वो 3 साल का बच्चा है. Your all audience are 3 years old. Agree everyone? From today onwards, you have to think like this. Your audience is 3-year-old. How will you teach that 3-year-old boy or girl? आप कैसे पढ़ाओ? Now, I'm asking question. How many of you have so much topic to share? Write down in the chat box, yes. If now you have a topic to share, do you all know the ABCD of your niche? If you know the ABCD of your niche, write down in the chat box why. Only Ankita know ABCD. Rest of all, okay, Rashmi also know ABCD. Amar also know level 1. Okay. Okay, Ankita, 1, level 1. You all know level 1, right? And who else knows the ABCD? Because whatever you are doing, at least you need to know ABCD. Rest you can upgrade. Rest you can upgrade. Archana, you know the ABCD of your field? If you know, write down in the chat box, yes. Bhakti, do you know the ABCD of your field? Then write down in the chat box why. Yes, anything, yeah. So if you know the ABCD of your field, give me 5 topics right now in the chat box. What is that? Give me 5 topics. I'm just asking about the A. I'm asking about the B. I'm asking about the C. I'm asking about the D. And I'm asking about the E. 5 topics from your field which you need to teach. Completely new person, completely new. How to boost confidence. Okay. And more, 5 topics. 5 topics I am looking for. Amar Singh, investing. Okay. Ankita is coming with the self-worth, self-esteem. Okay.
Shruti? Yes, everyone. I am looking for answer with every. हम मुझे हर किसी से आंसर चाहिए. In case any my language is something. अगर अर्चना ने मुझसे कहा था मैम मैं हिंदी अच्छे से समझती हूँ तो अर्चना यू कैन रिक्वेस्ट मी. अगर कोई भी बात नहीं समझ में आ रही तो आप मुझसे पूछ सकते हो. आई विल रिपीट. ओके, मैं रिपीट कर दूंगी. हाउ टू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड, वेरी गुड. सेल्फ अवेयरनेस, very good. Trading, what is the trading? Yes, even I also don't know what is the trading. Shruti, I missed something. Can you please repeat? Yeah, sure. Shruti, are you aware of the ABCD? ABCD means basics of your niche. If you know the ABCD of your niche, what is those 5 topics which you want to cover first? Write down in the chat box those 5 topics. Okay. Shruti, okay, done. Okay, creativity. Wow. Rashmi, I have one idea for you. Suppose sometime what happened, people have always, there is a, belief of some kind of material. Like अगर आप कोई चीज क्राफ्ट करते हो फैब्रिक से, तो उनके माइंड में रहता है कि यार ये कितने दिन चलेगा, ड्यूरेबल है कि नहीं. You can come with such kind of topic. राइट आप ना जो भी आप मटेरियल यूज कर रहे हो ना उस मटेरियल की वैल्यू बताओ. सपोज आप कह सकते हो कि दिस मटेरियल व्हाट वी आर यूजिंग दैट इज द रिसाइक्लेबल. इट्स अ वेरी वेरी मच नेचर फ्रेंडली. और जब लोगों को उसके मटेरियल के बारे में पता चल जाएगा ना तो उस मटेरियल से बनी हुई चीजों में इंटरेस्ट आने लगेगा. तो व्हाट इज द एबीसीडी? स्क्रैच से वो जो चीज बनी है, लोगों को अगर उसमें इंटरेस्ट आ जाए तो उससे बनी हुई चीजों में इंटरेस्ट आ जाएगा. जैसे अगर हम मिट्टी से बनी हुई चीजों को, जिन लोगों को बहुत पसंद है, या कहते हैं कि मिट्टी से बनी हुई जो चीजें होती बड़ी जो है नेचर फ्रेंडली होती है, तो उससे बनी हुई हर चीज यूज करने लगते हैं. आजकल तो तवे भी आने लगे हैं, राइट, मिट्टी के बने हुए, और लोग खरीद रहे हैं. लेकिन उससे पहले उन्हें पता है कि वो मिट्टी का बना हुआ तवे की वैल्यू क्या है. दैट्स व्हाई दे आर गोइंग फॉर दिस, राइट, बिकॉज दैट इज अ नेचर फ्रेंडली. तो अगर आप अपनी फील्ड में लोगों को मटेरियल के बारे में एक्नॉलेज करो, जो भी आप मटेरियल यूज कर रहे हो अपने आर्ट एंड क्राफ्ट में, देन पीपल स्टार्ट लविंग दैट कि उस मटेरियल से आपने क्या क्या बनाया. तो दिस इज जस्ट आइडिया. यू ऑल्सो कैन ब्रिंग मोर आइडियाज. बस मैं ये कह रही हूँ कि आपको नए तरीके से लोगों को नर्चर करना है, अवेयर करना है, राइट. क्योंकि हम जैसे श्रुति ने कहा मैनिफेस्टेशन से आप अपनी डिजायर्ड जॉब अपनी लाइफ में ला सकते हो. लेकिन मैनिफेस्टेशन से डिजायर्ड जॉब आ जाएगी, पर मैनिफेस्टेशन कैसे होएगा, उसका पीछे का बिहाइंड द सीन क्या है, श्रुति को पहले को बताना है, राइट. देन पीपल विल गेट इंटरेस्टेड टू नो कि मैनिफेस्टेशन जो डिजायर्ड जॉब मिल गई. वैल्यू ऑफ होममेड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स. यस, गुड. या वैल्यू ऑफ होममेड. बट सी, इसमें भक्ति आपको क्या करना है, जो होममेड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के अंदर जो इंग्रेडिएंट है ना, हीरो इंग्रेडिएंट, पहले आपको उसकी वैल्यू बतानी पड़ेगी. सी, लेट्स अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी. आप में से कितने लोग जानते हो कि आंवला बहुत फायदेमंद होता है? मैंने एग्जांपल वेबिनार में दिया, सब लोग जानते हैं. अब मैं आंवला गूसबेरी, सब लोग जानते हैं कि आंवला बहुत फायदेमंद होता है. अब आंवले से बनी हुई कोई भी चीज हमारे सामने होती है, चाहे वो हेयर ऑयल हो, या कोई स्किन क्रीम आ जाए, या कुछ जूस पीने के लिए आ जाए, वी ट्राई टू ग्रैब इट. व्हाई? बिकॉज वी नो द बेनिफिट ऑफ द आंवला. गॉट माय पॉइंट? सो दिस इज द ABCD. इफ यू विल कम एंड से कि भाई ये जो हेयर ऑयल है ये जो है रोज वाटर से, मतलब रोज की पेटल से बना है, तो पीपल विल नॉट गेट इंटरेस्टेड दैट मच जितना कि उनको आंवला जो गूसबेरी है उसका हेयर ऑयल पसंद आएगा, क्योंकि उन्हें आंवले के ज्यादा गुण पता है rather than the rose petal, right? So same you have to do what? First you have to focus on the ABCD over the social media, and then you start telling the product. Understood, अर्चना? आपको अगर किसी को मेकअप सिखाना है तो आपको बताना पड़ेगा मेकअप करने से आपको क्या मिलता है. कॉन्फिडेंस, मोर प्रेजेंटेबल, राइट? इस तरह की चीजों के बारे में आपको भी बताना पड़ेगा थोड़ा बहुत.
राइट। अगर आप किसी प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो, दिस क्रीम इज वेरी गुड, तो क्रीम में इंग्रेडिएंट क्या है पहले आप वो बताओगे। विटामिन ई इज वेरी गुड फॉर योर स्किन, सो दिस क्रीम have a vitamin E and that's why I'm recommending, right? So we have to work on the ABCD. How many of you understand the concept of ABCD? If you understood, write down in the chat box why. और नहीं समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। अर्चना, डू यू हैव क्लैरिटी? एबीसीडी के बारे में क्लैरिटी मिली? आप सोशल मीडिया पे अपना जब कंटेंट बनाना शुरू करोगे तो आपका पहला आइडिया क्या आएगा? दैट इज द एबीसीडी। जिस फील्ड को आप बिलोंग करते हो उस फील्ड का एबीसीडी क्या है, पहले वो हमें बताना है अपने व्यूअर्स को, क्योंकि आपको नहीं पता कि कितने लोग आपको देख रहे हैं, राइट? रश्मि जी, आप बताइए, आपको समझ में आया क्या एबीसीडी आपकी फील्ड में? नहीं, आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज्ड बिकॉज कोई बात नहीं, बताइए। व्हेन आई वाज थिंकिंग अबाउट माय नीश एबीसीडी, हाँ, तो मेरे दिमाग में एक्चुअली आई वाज डूइंग जस्ट बिफोर द क्लास, मैं अपना काम ही कर रही थी और स्टिल हाँ, इट्स गोइंग ऑन। तो हाँ, मैं पूरा सामान मेरा सारा सामने रखा हुआ है, लेकिन मैं अभी भी ये नहीं समझ पा रही हूँ कि व्हाट शुड आई राइट इन एबीसीडी, मतलब यू नो अच्छा, कि मुझे आप कोई एक चीज बताइए जो आप बनाते हो और मैं जो अभी करती हम हूँ। सब आपको आइडिया देंगे। गाइस, बी रेडी टू गिव आइडिया टू रश्मि जी कि इनकी फील्ड में एबीसीडी क्या हो सकता है। दिस इज द ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन। जितना आप सोचोगे वो अपने लिए भी सोच पाओगे और किसी के लिए भी सोच पाओगे। तो रश्मि जी, आप मुझे बताइए अपना एक प्रोडक्ट जो आप बनाते हो। मैं जो बनाती हूँ, ओके, रिसेंटली आई हैव कंप्लीटेड, मैं लाइव ही दिखा देती हूँ आपको। एवरीवन ब्रेनस्टॉर्म फॉर द रश्मि जी का प्रोडक्ट। अभी आपने अपने लिए भी सीरीज सोचा। हर किसी का पर्सपेक्टिव बहुत अलग होता है चीजों को सोचने का। आपको प्रोडक्ट के बारे में प्रोडक्ट देखना है रश्मि जी का और आपको अपना आइडिया देना है। यू ऑल कैन गिव आइडिया इन द चैट बॉक्स, ओके? सो आई एम लुकिंग इन द चैट बॉक्स, एवरीवन यू विल गिव आइडिया, जो भी आपके माइंड में आए दो। आप अपने घर में इनके सामान की नीड कैसे देखते हो? यस, रश्मि जी आप म्यूट पे हो। मुझे ये नहीं पता कि कैमरा स्विच कैसे होगा, मैं कैसे आपको दिखाऊं चीजें। आप कैमरा ना जस्ट टॉप पे लेफ्ट साइड में कैमरे को है स्विच करने का, देखिए नॉर्मली लेफ्ट साइड में टॉप पर होता है। जूम पर ओके, है ना? यस यस यस। सामने से भी आप चाहो तो दिखा सकते हो, वी विल अंडरस्टैंड, राइट? फिलहाल वाओ गाइस, लुक एट द ज्वेलरी। these are मेहंदी फॉर मेहंदी फंक्शंस, हाँ, हाँ, है ना, जो एक जैसे टीके आजकल इन जनरल में लोग लगाते हैं, लाइक दैट। ये अभी ये सारा कंप्लीट होकर के ड्राई होने के लिए रखा हुआ है, दैट्स व्हाई ये अभी उल्टे हैं, बट सीधे होकर के ये इस तरह से दिखेंगे। ओके। और इसी तरह की और भी फैब्रिक ज्वेलरी प्लस अदर कस्टमाइज डेकोरेटिव आइटम्स, लाइक शादी के ट्रोशियो जो पैकिंग्स होती हैं और स्वागत वगैरह की जो आइटम्स होती हैं, बारात स्वागत एंड ऑल, तो मैं वो सारी चीजें बनाती हूँ। अब बहुत सारे इंस्टाग्राम पेजेस हैं इन सारी चीजों को लेकर के, बहुत सारे लोग बहुत सारा अच्छा काम कर रहे हैं, बट स्टिल आई एम नॉट गेटिंग कि मैं एबीसीडी क्या बताऊं। मतलब मैं इसमें स्टिच करना होता है, इसमें आपकी क्रिएटिविटी, आपका दिमाग जो बोलेगा वो डिजाइन बनाओगे। और फिर सबसे पहला मुझे ऐसा लग, जो कस्टमर चाहता है, सबसे पहले मेरे पास में जो भी ऑर्डर्स आते हैं, लाइक कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, फिर मैं उस पे काम करती हूँ। फिर उसकी रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं उसके अकॉर्डिंग उनका बजट को लेकर के मुझे काम करना होता है कि उनके बजट में मेरा डिजाइन किस तरह से फिट आएगा। तो मैं उसमें क्या एबीसीडी बताऊं, क्या स्टिचिंग या पेंटिंग या डिजाइनिंग। Here is a product। जब हम प्रोडक्ट की बात करें, देयर इज सर्विस की एबीसीडी इज डिफरेंट और प्रोडक्ट की सर्विस। जो प्रोडक्ट है आपका
उसकी ABCD इज डिफरेंट। तो मैंने कहा एक प्रोडक्ट मैंने बताया कि मिट्टी के बने हुए बर्तन, राइट, हम सबको ही पता है कि हम क्यों उसे प्रेफर करते हैं, बिकॉज दिस इज द मतलब नेचर फ्रेंडली, और हमारी पुरानी जो चीजें हैं उनसे जुड़ी हुई कि हम इस पे जब खाना बनाते हैं तो किसी तरीके से भी वो रिएक्ट नहीं करता है, नुकसान नहीं करता है, और उल्टा मिट्टी की सौंधी खुशबू आती है, दैट्स व्हाई वी गो, राइट, यही रीजन है, राइट। रश्मि जी, आप आर्टिफिशियल ज्वेलरीज क्यों बनाते हो? ताकि लोग अपना फैशन पूरा कर सके। हर कोई गोल्ड ज्वेलरी नहीं खरीदने जा रहा है हर ओकेजन के लिए, राइट, एवरीवन कांट हैव द मैचिंग ज्वेलरीज, प्रीशियस ज्वेलरीज मैचिंग नहीं ले सकते, राइट। आप जो ज्वेलरी बना रहे हो दे कुड बी लाइट वेट, पॉसिबल है, मैं सिर्फ एग्जांपल ले रही हूँ, मुझे नहीं पता है कि लाइट वेट, पर अगर सपोज मैं अगर ज्वेलरी बना रही होती तो मैं कैसे प्रमोट करती, मुझे पता है द पेन पॉइंट ऑफ माय क्लाइंट, मुझे हैवी ज्वेलरी पहनते हैं तो बहुत देर तक वी कांट वियर इट, राइट। सेम गाइस, यू हैव टू ब्रेनस्टॉर्म, आपके क्लाइंट का पेन पॉइंट भी क्या है वो भी जानना बहुत जरूरी है, राइट। तो सबसे बड़ा पेन पॉइंट क्या है आपके क्लाइंट का, जो मैं अभी अगर मैं क्लाइंट हूँ तो मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी कि मैं हैवी ज्वेलरी बहुत देर तक नहीं पहन सकती, मुझे जो ज्वेलरी चाहिए वो मैचिंग चाहिए, तो मैं जाके गोल्ड ज्वेलरी से मैचिंग तो बनवाऊंगी नहीं कि भाई इसमें ये एमराल्ड डाल दो, ये बहुत प्रीशियस स्टोन डाल दो, मुझे पता है दिस इज फॉर अ स्पेशल ओकेजन, जो ड्यूरेबल भी हो, लाइट वेट भी हो, और उसमें शाइन हो। वी यूज टू सी मेनी ज्वेलरीज इन आर्टिफिशियल, वो शाइन नहीं करते तो अच्छा नहीं लगता, राइट। हम खरीदना चाहते हैं, हम आर्टिफिशियल ज्वेलरी खरीदना भी चाहते हैं, पर उसमें भी हम क्वालिटी देखते हैं, राइट, वी लुक इन द क्वालिटीज, राइट। तो आपकी ABCD यहाँ पे ये हो सकती है, पहली चीज की आप क्या यूज करते हो, आपने जो भी आपने दिखाया उसमें क्या प्रोडक्ट यूज करते हो, आई थिंक कोटा था क्या वो? मतलब फैब्रिक है, उसके नीचे हम लेते हैं वुडन बेस या फिर MDF बेस, यस, देन उस पर मैंने उस पे उसका कोन पेंटिंग का पेंटिंग करके, देन आई हैव ओके, स्टिक सम स्टोन्स एंड देन पर्ल वर्क आई हैव डन ओके, लेट ऑन मी दैट। गिव वन, योर ज्वेलरी इज स्किन फ्रेंडली, इट्स नॉट गोइंग टू गिव एलर्जी टू एनीवन, एम आई राइट? कितनी ज्वेलरीज होती हैं जो हम लेते हैं और वो एलर्जिक होती हैं, मेटल यूज होता है, तो आपकी जो ज्वेलरीज हैं दैट इज आल्सो इको फ्रेंडली, क्योंकि MDF वगैरह तो ऐसी चीज है दैट अगेन गो इन द नेचर, राइट। हाँ, So one thing is eco-friendly jewelry. You can give the name to your jewelry. This is the eco-friendly jewelry. Second, what you can give, this is the skin-friendly jewelry. उसका कोई भी आप पहनोगे तो रैशेस नहीं होंगे, आप पहनोगे तो रिएक्ट नहीं करेगा, बहुत लोगों के ईयर्स होते हैं उसमें रिएक्ट कर जाती हैं मेटल का पहनते हैं। सी अब आपको ना खुद को एक कस्टमर बनना है, और आप सोचो कि आप ये ज्वेलरी क्यों लोगे अगर कोई देगा तो। थर्ड, वेरी लाइट वेट ज्वेलरी। फोर्थ, लुकिंग वेरी लग्जरियस, हमें इस पैसे में वो लग्जरी दे रहा है। it's all about, we are talking, it's all about jewelry, या but I do so many things. तो मैं अपने काम के नीश के बारे में, when I have to write some ABCD 5 points, तो उसमें I'm not doing only jewelry, तो that's why I got confused कि मैं क्या लिखूं। रश्मि, एक टाइम पे एक हफ्ते के लिए एक प्रोडक्ट को हीरो बना लो, ठीक है। एक हेयर ऑयल कंपनी में भी वो 4 तरह की हेयर ऑयल बेचती है, पर वो धीरे धीरे सब कुछ बताना शुरू कर दे, क्योंकि सोशल मीडिया पे आप एक दिन तो 5 कंटेंट डालोगे नहीं, धीरे धीरे डालोगे। तो स्टार्ट टेलिंग अबाउट द ज्वेलरी फर्स्ट, देन कम विद द नेक्स्ट प्रोडक्ट, देन कम विद द थर्ड प्रोडक्ट। बट क्या है, जब आप अपनी पहचान बनाना शुरू करते हो, वो पहला ही हीरो प्रोडक्ट होता है। am I right everyone? पहला एक हीरो प्रोडक्ट होता है, लोग फेथ शुरू करते हैं आपसे। तो कोई ऐसा ज्वेलरी एक ऐसा फील्ड है कि एवरीवन लाइक ऑल द टाइम, तो यू कैन कम विद दिस हीरो प्रोडक्ट। एक हफ्ते 2 हफ्ते सिर्फ ज्वेलरी के बारे में बात करो, देन announce over the Instagram, I am launching this product also, how many of you want to give a try for this, right? So start telling about each and every product, but one by one। आखिर अभी भी तो आप बता ही नहीं रहे हो, तो जब बताना शुरू करोगे तो one by one ले जा सकते हैं। Are you agree with this, रश्मि? धीरे धीरे हम बताएं, चलेगा?
ओके, तो अभी कोई कंफ्यूजन, क्लियरिटी? So first hero product is jewelry. So your first to 7 content will be all about the jewelry. Focus on only one product right now. Clear? Mr. Ahmad, do you have any confusion? This is the all clarity. This is the one-on-one session I am giving you. आपको यहाँ पे सारे confusion clear करने हैं so that you can start your content creation journey. Everyone, be ready with your question. I am here to solve this. Yes. No, till now it is very much clear to me. Okay. Let it come to my list and then probably I'll have some doubts. Sure. Thank you so much. So your homework for today, please write down in your notebook. You will come tomorrow. We are again going to meet. Tomorrow when I will meet, I'll ask you again what is the 5 topic from your niche. Niche is whatever you are doing. आप जो भी कर रहे हो वो आपका बिजनेस ही आपका niche है. ठीक है, बहुत कंफ्यूज नहीं होना है niche के बारे में. ओके, अब 5 टॉपिक रश्मि जी आपको निकाल के लाने हैं. ऑलरेडी प्रोडक्ट डिसाइड हो गया है किसके बारे में निकालना है. सो नो कंफ्यूजन, कंफ्यूज नहीं होना है आपको. एंड श्रुति एंड भक्ति. ओके भक्ति, यू हैव क्वेश्चन? Yeah, Indu, I just messaged you. If you can check and let me know if I am on the right direction. माई प्रोडक्ट होममेड ऑर्गेनिक उबटन. वेरी गुड. केमिकल फ्री प्रोडक्ट है, जेंटल ऑन स्किन है, बीइंग नेचुरल एनवायरनमेंट है, फ्रेंडली है, होम डिलीवरी है. इट्स अ गुड भक्ति. बट अगेन आई सजेस्ट यू गो इन द सेकेंड लेवल. फर्स्ट बताओ, पहले आपको बताना है कि आप ये जो केमिकल फ्री प्रोडक्ट यूज कर रहे हो तो क्या इसके अंदर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट क्या यूज कर रहे हो, राइट? सपोज ओके, टेल मी द हीरो इंग्रेडिएंट ऑफ योर उबटन. आपके उबटन में कौन सा इंग्रेडिएंट पड़ा हुआ है? It is like many ingredients are there, but the one which people know is like chandan and orange powder, rose petal powder. So भक्ति, you have question in all your organic. comment, okay? चेक कर लेना. अमर सर ने पूछा है कलर साफ हो जाएगा क्या? Sure, definitely. I have the reviews also with me. अमर सर, you can have some tips from the Archana also. अगर नहीं साफ होगा तो करेक्ट कैसे करना है ऊपर से? We have both the alternatives here. You have both the option, okay? आजकल तो Chemical boys free भी with touch-up करते chemical. ही हैं. Right. No, but what you said is like I also have 2-3 things which I am doing. So I think it's better to focus on one first and review it better in a better way. First product, and then because it creates confusion. I can understand what she is going through because same was my condition also. When you are dealing with 3-4 things, then it becomes difficult to focus on one. So I think it's better to focus on one-to-one products and then Yes. go ahead. जैसे पहली बार जब आप अपना प्रोडक्ट लेकर आओगे और लोग जानना शुरू करेंगे तो आप कुछ भी दो, क्योंकि पीपल आर वेरी हैप्पी विद यू, राइट? आपके यहाँ मेहमान आएगा तो आप पहले एक ही चीज पकड़ाओगे ना. पहले आप पानी देते हो, मिठाई देते हो. अगर आप एक साथ ही पानी, मिठाई, चाय, खाना रख दोगे तो क्या खाएगा वो? नहीं खा सकता ना. तो एक एक करके दो उसे, और अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि आपका ऑडियंस आपको पसंद कर रहा है कि नहीं. आपसे वो खुद डिमांड करेगा, मैम कुछ और भी लेके आइए, मेरी ये रिक्वायरमेंट है, क्या आप ये ला सकते हो क्या? और जब ऑडियंस की तरफ से डिमांड आता है तब तो आप वो ना 10x एनर्जी के साथ काम करते हो, बिकॉज दैट्स यू आर इन डिमांड नाउ, राइट? तो पहले डिमांड में आने के लिए अवेयरनेस फेज पे काम करेंगे. ओके अर्चना, क्लियर? एवरीवन क्लियर? ओके भक्ति, माय सजेशन इज फॉर यू कि आप ना कंटेंट 2 तरीके के बना सकते हो फर्स्ट वीक का. पहले तो 3 कंटेंट ऑलमोस्ट ऐसे होने चाहिए कि जो आपने इंग्रेडिएंट यूज किए हैं. अगर आपका उबटन है और सपोज मैं मानूं कि हल्दी, टर्मरिक की आपने यूज किया है, तो हल्दी के पहले गुण बताइए और चेहरे से रिलेटेड गुण बताइए. डू यू नो दैट टर्मरिक इज वेरी वेरी यूजफुल फॉर योर स्किन? 5 पॉइंटर्स आपने दे दिए. नेक्स्ट डे आप बता दो कि दिस इज द प्रोडक्ट. बट अगर आपने पहले अवेयरनेस फेज नहीं दिया, राइट? जब तक हम ए नहीं सिखाएंगे, एप्पल बोलना कभी नहीं बता पाएंगे, राइट? तो आपको पहले ए बताना है और फिर एप्पल पे फोकस करना है. क्लियर? But few ingredients only I can declare, right? यस ऑफ कोर्स. Major. लोग नहीं समझेंगे कि आप उससे रिलेटेड बात कर रहे हो. वो तो 4 दिन बाद आपका प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे होगे ना.
उससे पहले तो आप नर्चर कर रहे होगे, लोगों को बता रहे होगे हाँ। इसका ये बेनिफिट है, लोग सेव करना शुरू होंगे, हम्म। अच्छा हल्दी के ये बेनिफिट है, ओके ओके ये कुछ, जब एक दिन आप प्रोडक्ट लेकर आओगे तो अच्छा बेनिफिट तो ये मुझे पता है, नाउ आई थिंक आई शुड इन्वेस्ट इन, राइट? Yeah, आप got ना it, yeah. पेसिवली काम कर रहे हो, राइट? हम्म। आप पेसिवली काम कर रहे हो, आप लोगों से कह नहीं रहे हो लो, आप लोगों को खुद से उनके अंदर इच्छा आनी चाहिए कि मुझे लेना है, राइट? जैसे वो इसका Right. एक स्टेटमेंट है, डोंट सेल लेट देम बाय, डोंट सेल लेट देम बाय। सो आपको यही करना है कि लेट देम एक्नॉलेज यू कि मैम यू आर डूइंग अमेजिंग। क्लियर? Right. Everyone clear? Anyone have a doubt related? अभी भी टॉपिक नहीं आ रहा है तो लेट्स क्लियर राइट नाउ सो दैट कल आप नेक्स्ट लेवल पे होगे। टुडेज 1 माइलस्टोन अचीव्ड कि करना क्या है। ओके, सो Rishati, you are clear? Share, you didn't share your topic. I shared, Indu. Can you check? Let me check. So till now I am talking with Shruti. अपनी नोटबुक में सारे टॉपिक जो माइंड में आ रहे हैं लिख डालो। Don't keep your thoughts in your mind because your mind is juggling with many things whole the day. आपका दिमाग इतनी चीजें संभाल रहा है ना कि ये जो मूवमेंट है ना और जो आइडियाज अभी आ रहे हैं वो आपको पूरे दिन नहीं आएंगे, तो उसको अभी कॉपी पे लिख लो ताकि कल जब हम क्लास में मिलेंगे तो हम उसके नेक्स्ट प्रिपरेशन की बात करेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड। ओके ओके, लेट मी चेक द श्रुति ने क्या दिया था। श्रुति, व्हाट इज हीलिंग? I would suggest, okay, what is the healing? Yes, this term is very big. Healing आप बताइए कि healing होती क्या है? Okay, and why it required मत बताइए, पहले healing बताएंगे, next reel में why healing is required बताएंगे। अच्छा, reel जो भी आप वीडियो बना रहे हो हमेशा माइंड में रखना है, एक बार में एक ही प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। अगर हम बच्चे को पहली बार यही पढ़ाते हैं कि आप 2 स्लैंट लाइन डालोगे एंड देन एक स्लीपिंग लाइन डालोगे और ये ए बन गया, हम क्या उसको बताते हैं कि ए फॉर एप्पल होता है? नहीं बताते, राइट? तो आपको एक बार में एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है, छोटी छोटी रील्स पे फोकस करना है, बड़ी रील्स पे नहीं फोकस करना है। 100 डेज योर रील नॉट मतलब कि 20 सेकंड के ऊपर नहीं जानी चाहिए, ये मैंने बहुत टाइम दिया। 20 सेकंड के ऊपर आपकी कोई रील नहीं जाएगी और मैक्सिमम रील जो होगी वो 10 सेकंड की होंगी। यस अमर जी बताइए। The problem is like creating a big reel is okay because you have the content, but cutting it short, what is more important and what is more, attractive to the customer, or sorry, to the audience is a bit difficult in the beginning phase, that how we can, choose that what to be told to the people and what to be, kept with us. That's why I'm saying focus on the small content, don't focus on the big content. आप तो मेरा क्वेश्चन नहीं, मतलब मैं ये कह रहा हूँ ना कि जैसे जब बड़ा कंटेंट होता है ना आपके पास, तो बड़ा कंटेंट आप शेयर कर सकते हो, बिकॉज आपको मतलब ये है कि जैसे मुझे इतना इतना मीन्स 8-10 लाइनें हैं जो आपको बतानी है, बट द प्रॉब्लम इज जब कभी ये होता है ना कि ठीक है इन 8-10 लाइनों को कट करके केवल 4 लाइन में आपको कंटेंट बताना है, तो एक प्रॉब्लम हो जाती है कि इसको कट शॉर्ट करके क्या 4 लाइनों में रखना है, ये दैट इज द वन ऑफ द प्रॉब्लम। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। What do I say कि आपको हर चीज बोल के क्यों बताना है? चलो प्राइमरी स्कूल में जाते हैं, राइट? 4 लाइन बताते थे और 10 पेज का होमवर्क मिलता था, am I right? What you have to do? Only 2 लाइन ऊपर बताना है, बाकी का इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में दे दीजिए। तो हमें ऐसा लगता है कि हमें सब कुछ बोल के बताना है, बट सोशल मीडिया वर्क्स डिफरेंटली। आप बोलो आई एम गोइंग टू शेयर यू 5 टिप्स, ओके? 5 टिप्स, 2 बोलना है और बोलना है लास्ट 3 टिप्स रीड इन द कैप्शन। क्लियर? बट आर यू श्योर? क्योंकि मैक्सिमम टाइम अगर मैं एज एन ऑडियंस की बात करूं तो मैंने वो रील देख लिया ना, एंड देन आई रेयरली गो टू द कैप्शन एंड रीड इट। See why what
डज हैपन ना, हमें हमेशा ही लगता है कि जो हमें पसंद है वही सब पसंद कर रहे हैं। यही रीजन है कि हम सबसे पहले अपने आप को नो बोलते हैं, अपने आप को स्टॉप करते हैं और हमेशा बोलते रहते हैं परफेक्ट नहीं है। और क्यों हम अपने आप को परफेक्ट नहीं बोल रहे होते, हमें लगता है सभी कोई ऐसे ही बोलने वाला है। हियर यू आर नॉट जस्ट टारगेटिंग टू योरसेल्फ, आपका पर्सनल व्यू क्या है, आपको ये देखना है कि ट्रेंड में क्या चल रहा है। जब पूरी दुनिया इस तरह की रील को टाइम दे रही है तो आपकी रील को क्यों नहीं देगी? बिकॉज द मोस्ट वायरल रील आर ऑफ 6 seconds only, and you are making content of the 90 second, no one watching, just swap, and you are nowhere. Let me tell you guys, Instagram सिखाने का प्लेटफॉर्म नहीं है. This is the reality. People come there for the fun. If you will not have fun with your content, no one will watch you. अगर किसी को सीखना है अमर सर, अगर आप सिखाना चाहते हो तो then you should focus on the YouTube, right? So that's why YouTube is for the long content, right? So आपको क्या करना है, Instagram is only for the short content. शॉर्ट कंटेंट के साथ आप वहां पे आओ. अगर किसी को लॉन्ग कंटेंट बताना तो उससे बोलो कि बायो में यूट्यूब का लिंक है, वहां पे जाके पूरी वीडियो देख लीजिए. बट आपने यहाँ पे पूरी वीडियो बना दी और लोग बस 3 सेकंड व्हाट्सएप कर दिया. इंस्टाग्राम इज थिंकिंग यू मेड अ वेस्ट कंटेंट, क्योंकि कोई देख ही नहीं रहा है. अब यहाँ पे क्या हो गया, कंफ्यूजन क्रिएट हो गया. आपने कहा मैंने बेस्ट दिया, इंस्टाग्राम ने कहा अब आपने वेस्ट कर दिया टाइम. आपका ऑडियंस आप में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, क्योंकि वो वहां पे लोग ट्रेडिंग सीखने नहीं आते हैं. सोशल मीडिया इज नॉट अबाउट द लर्निंग, बट स्टिल few people is making it valuable platform, क्योंकि लोग वहां पे कंटेंट फनी वे में दे रहे हैं. क्यों इतना एडिटिंग है? आपको लगता है इतना डांस करके कंटेंट बनाने की जरूरत है? नहीं जरूरत है, बट दैट्स द फन प्लेटफॉर्म, राइट? ओके, गॉट माय पॉइंट? Yes, yes, yes. तो अगर आपको लॉन्ग कंटेंट बनाना है, प्रेफर द यूट्यूब एंड ब्रिंग द पीपल फ्रॉम द इंस्टाग्राम टू द यूट्यूब. गॉट क्लैरिटी? Yes, yes. और अपना जो लॉन्ग कंटेंट आप शूट करो. आई विल नेवर एवर से कि नहीं करना है. श्रुति, यू, अर्चना, एवरीवन, इवन माय रिक्वेस्ट इज कि जितने लोग इंस्टाग्राम पे हो सब लोग एक यूट्यूब आईडी बनाओ. कंटेंट कभी बड़ा हो जाए तो उसको यूट्यूब पे डालो और उसको शॉर्ट करके डाल दो इंस्टाग्राम पे. यू आर रिपर्पजिंग योर कंटेंट. फाइन. तो अपने आप को मत रोको. अगर आपके अंदर ज्यादा क्रिएटिविटी है, ज्यादा नॉलेज शेयर करने का मन है, ऑफ कोर्स शेयर, बट इंस्टाग्राम इज नॉट राइट प्लेटफॉर्म फॉर दिस. इवन अभी शायद 3-4 महीने में आ जाएगा. बहुत सारे जो कंट्रीज है वहां पे आ चुका है 3 मिनट कंटेंट, बट इंडिया में अभी भी नहीं है. तो जब इंडिया में वो आ जाएगा तो उस तरह की कंटेंट को इंस्टाग्राम पुश करेगा, एंड दैट टाइम यू कैन टेक अ लिवरेज ऑफ दैट. एंड आई टेल यू, अगर उस समय मेरे टाइम. So Indu, I have a question here. Yes, yes. तो अभी मैंने जो भी टॉपिक्स लिखे हैं ना, it is all I think long form content only, if you go to. Okay. So then you have to think how can you make it in a short form, or you can use the caption below वाला topic. डालो वहां पे लंबा सा. लोग बहुत पढ़ते हैं, हमारे साथ बहुत लोग पढ़ते हैं. Even such kind of content get more shareable and more savable. क्योंकि क्या होता है, let me show you one psychology है. आपने इतना बड़ा कंटेंट डाल दिया, राइट? अब लोग जब पढ़ना शुरू करते हैं उनके पास टाइम नहीं होता है, पर उन्हें इंटरेस्ट आ चुका होता है, तो वो सेव करके रख लेते हैं कि मैं बाद में पढ़ूंगा. जैसे ही उन्होंने वो सेव किया, इंस्टाग्राम को समझ में आता है दिस कंटेंट इज वेरी मच वैल्यूएबल. तो इंस्टाग्राम को लगता है कि ये कंटेंट बहुत अच्छा है, तभी लोग सेव कर रहे हैं, क्योंकि लोग प्रीशियस चीजें सेव करते हैं. And then Instagram started helping you to boost that content, and you started getting more exposure. So here you need to understand the psychology of platform, not psychology of yours. That will not work. वो काम नहीं करेगा. आपको ये काम करेगा कि इस प्लेटफॉर्म की क्या क्या रूल्स हैं, कैसे ये काम करता है. दिस इज ऑल अबाउट द मशीन ना. मशीन के बारे में आप समझते हो ना, कैसे चलती है.
तो ही आप उसको प्रॉपर वे में डील कर पाते हो. So everyone got the clarity? Yeah. Anyone have another question? Yes, ask. मैम जैसे आपने बोला है टॉपिक लिखने को, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा लिखो क्या, स्टार्ट क्या करूं. Everyone, please help Archana. Right. This is your test. कितना आपने समझा है? Guys, help Archana. Comment. Archana, giving you you can 2 use minutes. you can use Chat GPT for getting the topics actually. आपका Hello. टॉपिक ब्यूटी से है ना? यस, हेलो. Yes, yes. तो आप चैट जीपीटी पे जाइए और उस पे लिखना टॉपिक फॉर यूट्यूब. बेटर डू योर ब्रश को. हाँ तो होल्ड गो. टॉपिक फॉर यूट्यूब चैनल related to beauty. Take. Welcome. Or Archana, you can create first reel as summer is going on, so you can create a few reels on summer. That how can you protect your skin from summer, right? Like sun, क्या बोलते हैं ना उसको, sun burning से आप अपनी स्किन को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और इस तरह के कुछ टॉपिक की, सनस्क्रीन के क्या फायदे हैं और सनस्क्रीन क्यों अप्लाई करना चाहिए, सच टाइप ऑफ थिंग्स आप इस तरह का कुछ और ले सकते हैं. The review में how to take care of your skin in the summer. Come with this topic. Summer started. Now you have to take it. Yeah, Amar. वन मोर थिंग, आप अर्चना मैम एक चीज और ऐड कर सकते हो. जैसे लोगों को ना स्किन के बारे में बहुत वो रहता है कि मतलब आप अच्छे दिखना भी चाहते हो और स्किन पे कोई बैड इफेक्ट भी ना आए, तो उसके Yes. भी कुछ कुछ तरीके आप निकाल सकते हो, बता सकते हो कि मतलब ये चीज आप यूज करो, आपको अच्छा भी रहेगा और आपकी स्किन पे कोई इम्पैक्ट भी नहीं आएगी. आई हैव लिटिल नॉलेज बट आई थिंक आई Archana, Archana, maybe you can talk about different type of skins first, like normal skin combination, and how your products can work for different skin types. And Archana, Like you can write normal. it right now. जो अभी आपको बता information दी जा रही है उसको write करो, लिखते जाओ. So you don't need to rethink it. Writing will help to keep free your mind later. And जब भी कंटेंट बनाना होगा आप कर लोगे. तो ये सारे इवन अंकिता ने तो बहुत सारे जो है आपको आइडियाज दिए हैं. आई विल सजेस्ट यू कि इसको कॉपी करो, ऐसे सेलेक्ट करो, लेफ्ट क्लिक करो, कॉपी करो और अपनी व्हाट्सएप पे पेस्ट कर लो, पर्सनल व्हाट्सएप पे. ओके, इस तरह की जो भी आपको मिलते हैं ना, राय मिलती है, आप सोचोगे ना आपका एक दिन का काम खत्म हो जाता है, बिकॉज यू आर टॉकिंग विद योर ऑडियंस, राइट? एंड हियर इज दिस टाइप ऑफ ऑडियंस. तो बहुत ज्यादा होगा, थोड़े बहुत तो ऑडियंस इन लोगों से मिलते जुलते होंगे, राइट? तो यू हैव टू वर्क फॉर. और अगर आपने अमर सर की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी तो ही विल बी द फर्स्ट वन टू लाइक योर इंस्टाग्राम वीडियो. अमर राइट? यस यस डेफिनेटली डेफिनेटली. Right, and Yeah. he is going to share your video. So you have to focus on your real client जो कि आपके सामने बैठे हैं. Okay, let me ask to each and every one now. This is the one again final call before ending this call because time is over. Amar sir, you are clear? Yes ma'am, I am very much clear. Okay. Ankita, you are clear for about your topic? Yes, I'm clear. Archana, you are clear? Yes, ma'am. Bhakti, you? Yes, yes, yes. Rashmi? Yes. पक्का? रश्मि आप इतना धीरे से बोल रहे हो ना, मुझे बिलीव नहीं हो रहा. प्लीज आइए, कहाँ है आप? हाँ, फोन आर यू थोड़ा- क्लियर? हाँ हाँ यस, मेरा फोन थोड़ा दूर रखा हुआ था. आई एम डूइंग समथिंग एक्चुअली, मुझे बहुत जरूरी में कुछ टास्क, मतलब मेरा जॉब है, कंप्लीट करके कल सुबह ही देना कोई है. बात दैट्स नहीं, बट टॉपिक क्लियर है ना? आई जस्ट आस्किंग, जो मोटिव जो है आप जानना चाह रहे थे वो क्लियर है? पक्का? हाँ जी. ओके ओके. श्रुति? Yes, yes. Yes, so tomorrow when we will meet, we are actually going to shoot a video.
So topic should be clear. So we are going to do a very amazing thing tomorrow. Don't miss the session. Join on the time so that we can get few bureaus and we start third day. We will edit and we will share over the Instagram also. Anyone who is here don't have Instagram account? कोई है जिनके पास Instagram account नहीं है? सबके पास है? सबके पास है, right? Okay, fine. So, okay, guys, ending session today here only. Tomorrow, come dress up, proper dress up होकर आइएगा, because we are going to create a video in the session only. टॉपिक जो आप लिख कर आए हो थोड़ा सा उसके बारे में समझ के आना. वी आर गोइंग टू क्रिएट ओनली 10 सेकंड वीडियो, तो बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. 10 सेकंड वीडियो तो आप बस 2 लाइनें बोल दोगे. ओके ओके. और थोड़ा बहुत जो भी प्रॉब्लम है कि अरे हम डिस्क्रिप्शन कैसे लिखेंगे, वो हम सेशन के अंदर ही सीख लेंगे. क्लियर? Right. क्लियर? ओके. वन मोर थिंग व्हाट यू हैव टू डू, आज के बाद आप जब भी इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन करोगे, यू विल नॉट वॉच द फन वीडियो, यू विल वॉच द वीडियो ऑफ दोज पर्सन फ्रॉम हु आर इंस्पायर. आप किससे इंस्पायर हो, कौन आपकी फील्ड में बेस्ट कर रहा है. वैसे 3 से 4 अकाउंट आप चेक करोगे, उनको फॉलो भी कर लोगे, उनका बेल बटन भी प्रेस कर दोगे, ताकि जब उनका अकाउंट जब भी वो कुछ नया पोस्ट करे तो आपको दिखे. अगर इसमें से किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि सारा काम कैसे करते हैं, वी आर गोइंग टू लर्न दैट ऑल्सो टुमारो. ओके, हम वो भी सीखने जा रहे हैं. तो हम कल 3 चीजें सीखेंगे. हम शूट करेंगे वीडियोस को, उनका कैसे डिस्क्रिप्शन बनाना है, कैसे कैप्शन लिखना है, वो करेंगे. तो प्रॉपर आप ड्रेसअप होकर आओगे, जैसा भी आपको शोकेस करना है सोशल मीडिया पे उसके अकॉर्डिंग आओगे यहाँ पे. एंड थर्ड इज व्हाट इंस्टाग्राम पे सीखेंगे कि हम कैसे उन लोगों को फॉलो करें जिनको देखकर हम अपनी जिंदगी में थोड़ा आगे बढ़ पाए, अपना लेवल अप कर पाए, ना कि उन टॉक्सिक लोगों को देखेंगे जिनको देख के हम डिग्रेड करें अपने. तो वी विल अंडरस्टैंड टाइप ऑफ कंटेंट वी आर कंज्यूमिंग, टाइप ऑफ कंटेंट वी आर क्रिएटिंग. दिस इज इक्वल, गार्बेज इन गार्बेज आउट. तो कुछ अच्छा इन करेगा तो ही अच्छा बाहर निकलेगा. क्लियर? दिस इज द माइंडसेट. So we are going to work on that. So don't miss tomorrow's session and come with the full preparation. Okay? Good night, All ma'am. the best, everyone. Thank you so much. Thank you. And guys, don't forget to share your feedback. How do you share your feedback? You can share feedback me in personal because you guys are in a community. So, but personally, you can give me feedback of every session. This will help me to improve. In case if you have any doubt, I will try to solve in the another session. This is what I can do, right? Clear, Archana? Archana, Yes, अगर आपको कोई भी लैंग्वेज प्रॉब्लम आएगी तो आप पूछ सकते हो. मुझे हिंदी ज्यादा आती है, इंग्लिश तो हमसे बोलने की कोशिश करते हैं. ओके ओके, चलो. ओके, गुड नाइट everyone. And give Good me night. your feedback. Don't forget to give me your feedback. Okay, good night. रश्मि जी फीडबैक दे दीजिएगा काम के बीच टाइम निकाल के. Yeah, sure. Okay. Okay. Thank you, everyone. Thank you so much, my students. Thank you. Yeah, Good night. thank you, Shruti. Thank you, Rashmi. Thank you, Archana. Thank you, Amarji. And thank you, Thank Rupali, you. for supporting to conduct this webinar. She is my support system. Class. I think she's busy, but she's one who is following up all the session, or she's giving me a very good support. That's why I'm able. She's supporting her family also same time. Left hand for me, right hand for family. Okay, guys. So good night. Take care. See you tomorrow. Good night, ma'am. Yeah. Bye bye.